شیر دل، جاسوسی، فرار، ہمت، سرفروشی، وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے والے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان، دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دل۔ دوسرے دن کوئی 10 بجے کے قریب کوئی 2500 غنڈے وجے نگر میں داخل ہوئے۔ ہندو پولیس افسروں کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ ان کو بال ٹھاکرے کی طرف سے خفیہ پیغام مل چکا تھا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کو بچانے کی یا غنڈوں کو پکڑنے کی کوشش کی تو اسے نہ صرف نوکری سے نکال دیا جائے گا بلکہ اس کا بوریا بستر گول کر کے اسے گجرات کے صوبے سے بھی باہر نکال دیا جائے گا۔ جو چند ایک پولیس کے سپاہی اس علاقے میں روز کی ڈیوٹی پر ہوتے تھے اس روز وہ بھی غائب تھے۔ مسلمانوں کے قتل اور غارت گری کے واسطے میدان صاف تھا۔ میں اور بالا جی اپنے آفس میں ہی ٹیلی فون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک ایک پل کی خبر وہیں ملنے والی تھی۔ ہمیں جو خبریں ملی تھیں وہ یہ تھیں کہ 2000 غنڈوں کے مسلح جلوس نے وجے نگر میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر دیا، مکانوں کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے، جو سامنے آیا اس کو کاٹ دیا گیا، مسلمانوں کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، مسلمان عورتوں کی اجتماعی بے حرمتی کی گئی، عورتوں کے سینے ننگے کر کے چھری سے ان پر رام رام لکھا گیا، انہیں اریاں کر کے سڑکوں پر دوڑایا گیا، معصوم بچوں کو سلاخوں میں پرو کر آگ کے اوپر بھونا گیا۔ 3 دن تک سورت کے مسلمان محلوں میں مسلمانوں کا قتل عام جاری رہا، مسجدوں کو آتش گیر مادے سے شہید کیا گیا، شاہ پیر، اونا نگر، وشرام نگر، تریلوک نگر اور ویڈر روڈ کے علاقوں میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، معصوم بچیوں کی بے حرمتی کر کے انہیں قتل کر دیا گیا، پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ یہ ساری رپورٹیں پوری تفصیل کے ساتھ شیو سینا کے نمرود بال ٹھاکرے اور اس کے دستے راست بالا جی کو ملتی رہی۔ دونوں بڑے خوش تھے، میرا خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ اگرچہ میں نے چند ایک غنڈوں کے نام لکھ رکھے تھے اور مجھے ان کی شکلیں بھی معلوم تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ سورت میں کہاں رہتے ہیں اور ان میں سے ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بھی طے کر لیا تھا، مگر میں کس سے سورت کے بے گناہ مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیتا۔ بالا جی نے میرے ساتھ 3 دن کے لرزہ خیز مسلم کش فسادات کے بعد علاقوں کا دورہ کیا۔ مسلمانوں کے مکان جل کر کوئلہ ہو گئے تھے، جلے ہوئے ملبے میں مسلمانوں کی کوئلہ بنی لاشوں کے ڈھانچے صاف نظر آ رہے تھے۔ ویڈر روڈ کے کونے پر پولیس نے دنیا کو دکھانے کے لیے بچے کچے مسلمانوں کا ایک اسکول میں عارضی کیمپ قائم کر دیا تھا۔ اس کیمپ میں زخمی عورتیں اور بچے بھی تھے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کا بازو غائب تھا، کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی تھی۔ اس کیمپ میں ہیرے تراشنے والے مسلمان بوڑھے کاریگر غفار احمد کی جوان بیٹی یاسمین بانو چٹائی پر چادر اوپر کیے مردہ لاش کی طرح پڑی تھی، اس کا باپ اور بوڑھی ماں اس کے پاس سر جھکائے بیٹھے آنسو پی رہے تھے۔ بوڑھے باپ نے بتایا کہ شام کے وقت جب دوسرے محلے میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی تھی تو اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر رامپور کے کسی محلے میں جانے کی کوشش کی، لیکن ہندو غنڈوں نے انہیں راستے میں ہی گھیر لیا۔ یاسمین کی ماں پر پیٹرول چھڑک کر اسے زندہ جلا دیا، بڑے بیٹے نے مزاحمت کی تو اس پر تیزاب پھینک دیا، پھر تلواروں سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ یاسمین کو اس کے بوڑھے باپ کے سامنے اریاں کر کے اس کی آبرو ریزی کی گئی۔ اس کے بعد یاسمین بانو پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگانے لگے کہ اتنے میں کچھ غنڈے 2 اور مسلمان لڑکیوں کو پکڑ کر لے آئے، وہ بھی اریاں حالت میں تھیں۔ غنڈے ان لڑکیوں کی طرف بھاگے تو یاسمین بانو کا باپ وہاں سے لے کر اسے نکل گیا۔ محلہ وجے نگر کی 8 سالہ مسلمان بچی مہجبین نے بتایا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ غنڈے اندر گھس آئے، میری ماں ان کے پیروں میں گر پڑی، ہمارا باپ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، خدا کا واسطہ دیا، گھر کا سارا سامان لے جانے کو کہا، مگر غنڈوں نے ایک نہ سنی، میرے باپ کو گھسیٹ کر باہر لے گئے اور میری آنکھوں کے سامنے انہیں ذبح کر کے تڑپتا چھوڑ دیا۔ میں روتی ہوئی ایک طرف کو بھاگ گئی اور اس کیمپ میں پہنچ گئی۔ وجے نگر کی ہی ایک خاتون عائشہ بی بی نے بتایا کہ غنڈے ان کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر آ گئے، میرے لڑکے کے سینے پر برچھی مار کر اسے شہید کیا، میری جوان بیٹیوں کے کپڑے پھاڑے، انہیں کہا کہ رام بولو۔ جب میری بیٹیوں نے ویسا نہیں کیا تو میری آنکھوں کے سامنے میری 4 جوان بیٹیوں کی آبرو ریزی کی اور انہیں تلواروں اور برچھیوں سے کاٹ دیا۔ دربار مدینہ مسجد کے امام قطب الدین آسامی تھے، غنڈے مسجد میں آ گئے، آتے ہی انہوں نے امام مسجد کو چھت کے پنکھے سے الٹا لٹکا دیا اور ان سے کہا کہ جے رام جی کی بولو۔ امام مسجد ہر بار اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، غنڈوں نے امام صاحب کو نیچے اتارا اور
तलवारों के वार से उनके कई टुकड़े कर दिए। उनकी बीवी को दरिंदगी का निशाना बनाया, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। विजयनगर में 200 मुसलमानों को शहीद किया गया। कैंप में मौजूद एक शख्स मेहदी खान ने बताया कि गुंडे उसके घर में घुस आए और मेरी बीवी को तलवार मारकर उसका हाथ काट डाला। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। गुंडों ने त्रिशूल उसके सीने में गाड़ दिया। उसके बाद मेरे मासूम बच्चों को तलवारों से काटने लगे। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने एक गुंडे के हाथ से तलवार छीनी और 2 गुंडों के पेट फाड़ दिए। तीसरे की गर्दन काट दी। गुंडे भाग निकले। मैं अपने जिंदा बच जाने वाले मासूम बच्चे अकबर को लेकर वहाँ से भागा। कतारगाम रोड पर ईदगाह के करीब रहने वाली जाहिदा बानो ने बताया कि उसके बाप, भाई और उसकी बहन को गुंडों ने उसके सामने आग में फेंक दिया। उसके वालिद, बहन कुलसूम और भाई मोहम्मद हुसैन को पहले शहीद किया गया। कतारगाम मस्जिद मोहल्ले में मुसलमानों के 50 घर थे। उन सबको लूट कर नजर आतिश कर दिया गया। वशराम नगर में इब्राहिम मास्टर अपने घर में बैठे चाय पी रहे थे कि गुंडों का टोला अंदर घुस आया। उन्हें पकड़ कर बांध दिया गया। उनके भाई की 20 साला लड़की को खींच कर बाहर ले गए और उसके कपड़े फाड़ कर उसे बरहना कर दिया। उसने मजाहमत की तो तलवार से उसका एक हाथ काट दिया, फिर दूसरा हाथ काट डाला। मास्टर इब्राहिम की बहू की इज्तिमाई बेहुरमती की गई। ऊना नगर में मुसलमानों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं। यहाँ डाइंग प्रोसेस के कारखाने थे। हिंदू गुंडों ने उन्हें नजर आतिश कर दिया और तकरीबन 8 लाख मीटर सिल्क का कपड़ा जला दिया गया। छोटा बाजार में अहमद भाई की साड़ियों की बहुत बड़ी दुकान थी। उसे लूट कर आग लगा दी गई। प्रेसिडेंट शूज के शोरूम के मालिक सदरुद्दीन भाई चंद माह पहले अहमदाबाद से अपना पूरा कारोबार समेट कर सूरत आ गए थे, क्योंकि अहमदाबाद में बार बार होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात ने उन्हें तबाह कर दिया था। सदरुद्दीन भाई के शोरूम में करोड़ों का लेदर और सिल्क का सामान पड़ा था। इस शोरूम को हिंदू 3 दिन तक लूटते रहे। जब शोरूम खाली हो गया तो उसे आग लगा दी गई। इसी तरह वशराम नगर के नसीम खान की दोनों फैक्ट्रियां जलाकर राख कर दी गई। अली खान की 5 टेक्सटाइल मिल्स और 3 मंजिला इमारत को राख का ढेर बना दिया गया। एवरग्रीन सोसाइटी सूरत में मुसलमानों के 150 खानदान आबाद थे। इनमें सूरत के सेल्स टैक्स कमिश्नर बशीर भाई भी रहते थे। यहाँ गुंडों ने बशीर भाई के बेटे और एक मुस्लिम फॉरेस्ट ऑफिसर के लड़के को जिबाह करने के बाद 50 मुसलमानों को कत्ल कर दिया। ऊना पानी रोड पर अली कैंप में एक शख्स ने हमें बताया कि पूरे सूरत शहर में मुसलमानों की तकरीबन 200 फैक्ट्रियां थी। उन सबको जला दिया गया। इस दौरान सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हेल्थ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुहाय ने, जो RSS का नायब सदर भी था, गुंडों की रहनुमाई की। मक्कार, मनुस्वानी और बालाजी मुसलमानों के हमदर्द बनकर उनकी लर्जाखेज दास्तानें सुनते रहे और उन सबको कहा कि तुम लोग बिल्कुल फिक्र न करो, हम किसी गुंडे को नहीं छोड़ेंगे। एक एक को पकड़कर पुलिस के हवाले करके उनको कानून के मुताबिक पूरी सजा दिलवाएंगे। कैंप के मजलूम मुसलमान ये सुनकर आंसू बहाते रहे। मैं इन दिलखराश वाकयात को सीने पर पत्थर रख कर सुनता रहा। बालाजी और मनुस्वानी मुसलमानों की मुनाफिकाना अश्कशोई करते रहे। अंदर से वो बहुत खुश हो रहे थे। जब हम तीनों मुसलमानों के कैंप से बाहर आए तो इन दोनों दरिंदा सिफत मुतासिब मरहट्टों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मनुस्वानी ने कहा, क्यों बालाजी, देखा हमारे आदमियों ने किस तरह मुसलमानों को चुन चुन कर खत्म किया है। बालाजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, धर्मचंद, तुम उग्रवाद में ये काम नहीं कर सकते जो तुमने यहाँ कर दिखाया। तुम तो चोरी छुपे पाकिस्तान जाते हो और बम धमाका करके ज्यादा से ज्यादा एक टाइम में 10 से 11 मुसलमानों को खत्म करते हो, मगर हमने सैकड़ों मुसलमानों को हलाक कर दिया, उनकी सारी फैक्ट्रियां तबाह कर दी। मैंने दिल में कहा, बालाजी, मैं भी मुसलमान का बच्चा नहीं अगर इन बेगुनाह मुसलमानों के खून का तुमसे बदला न लूं। लेकिन ऊपर से कहा, हाँ बालाजी, ये बात तो है, आप इस मामले में हमसे नंबर ले गए हैं। रात को हमने इस दौरे की मुकम्मल रिपोर्ट बाल ठाकरे को जाकर दी। बालाजी ने कैंप में पनाह गुज़ीन तबाहाल मुसलमानों से जुल्म सितम के जो लर्जाखेज वाकयात सुने थे वो सारे के सारे उसे सुना दिए। बाल ठाकरे उस वक्त अपनी जाफरानी सिल्क के कुर्ते पाजामे में मलबूस बियर पी रहा था। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। कहने लगा, मनुस्वानी ने मेरा दिल खुश कर दिया है। बालाजी, मैं चाहता हूँ कि भारत के सारे मुसलमानों को इसी तरह एक एक करके कत्ल कर दूं। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, धर्मचंद, अभी कुछ वक्त तुम हमारे साथ ही रहो। हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बाद दिल्ली और लखनऊ की मस्जिदों में भी बम धमाके करने का है। तुम इस काम में हमारे लिए बड़े फायदेमंद साबित होगे, क्या ख्याल है? मैंने कहा, सेनापति जी, मैं आपकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार हूँ। बाल ठाकरे ने माथे पर बल डालते हुए कहा, ये मेरी सेवा नहीं है धर्मचंद, ये भारत माता की सेवा है, राम राज की सेवा है। वो दिन जरूर आएगा जब भारत देश से सारे मुसलमानों का नाश कर दिया जाएगा। जो बच जाएंगे उन्हें हिंदू बना दिया जाएगा। फिर भारत पर हिंदू राज होगा और बाल ठाकरे का सपना पूरा हो जाएगा। बालाजी बोला, क्यों नहीं सेनापति जी, क्यों नहीं। हमने शिवसेना किस लिए बनाई है? इसलिए बनाई है कि भारत में फिर से हिंदू राज कायम किया जाए और तमाम मलिच मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। इन हिंदू लीडरों के ये नापाक अज़ाइम देखकर मैं सोचने लगा कि पाकिस्तान का कयाम किस कदर जरूरी था और कायदे आज़म ने पाकिस्तान कायम करके मुसलमानाने बरे सगीर पर कितना बड़ा एहसान किया है।
अगर पाकिस्तान न बनता तो मुसलमानों को अपने दीन इस्लाम के मुताबिक इज्जत व आबरू से जिंदगी बसर करने के वास्ते बर्रे सगीर हिंदुस्तान में कहीं कोई चाय अमन न मिलती। उस वक्त मुझे अपने अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियों का ख्याल आया कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर कायद आजम की बेलौस क़यादत में पाकिस्तान बनाया, और ये भी शिद्दत से एहसास हुआ कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान किस कदर कीमती और जरूरी है। सूरत में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद बाल ठाकरे ने बालाजी को एक गाइडलाइन दी। ये गाइडलाइन अहमदाबाद में एक बार फिर मुसलमानों का कत्लेआम और वहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात की आग भड़काने की थी। बालाजी और स्वानी ने मुझे भी अपने साथ बिठाया और अहमदाबाद में मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करने और उनकी औरतों को अगवा करने पर गौर शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने भी दिल में फैसला कर लिया था कि इन दोनों को अहमदाबाद में मुसलमानों का कत्लेआम करने नहीं दूंगा। साथ ही साथ मेरे दिल में इन हिंदू गुंडों के खिलाफ इंतकाम की आग भी भड़क उठी, जिन्होंने सूरत में मुसलमानों को बेदरीग शहीद किया था और मुसलमान खवातीन और मासूम बच्चों की इज्तिमाई बेहुरमती करके उन्हें हलाक कर डाला था। इन हिंदू कातिलों को जहन्नम में पहुंचाना जरूरी था। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता था। इसके लिए मुझे सूरत के जांबाज किस्म के मुसलमान कारकुन की जरूरत थी। सूरत में मुस्लिम लीग का एक छोटा सा दफ्तर शहर के शुमाली मोहल्ले में था, जिस पर हिंदुओं का कई बार हमला हो चुका था, मगर वहाँ के मुसलमानों ने हर बार गुंडों का डटकर मुकाबला किया था। इसके बावजूद सूरत में मुस्लिम लीग मुसलमानों की एक कमजोर जमात समझी जाती थी। मुस्लिम लीग का सदर एक मराठी मुसलमान इब्राहिम खान था, जिसकी हिंदू गुंडों के खिलाफ दलेरी के बड़े वाकयात मशहूर थे। ये आदमी मेरे काम आ सकता था। मैं इब्राहिम खान से राब्ता पैदा करने के बारे में गौर करने लगा। इब्राहिम खान ने मुझे और मैंने उसे नहीं देखा था। जाहिर है कि मैं हिंदू बनकर यानी धर्मचंद की हैसियत से उसे नहीं मिल सकता था। मुझे अपनी असली हैसियत यानी मुसलमान की शक्ल में ही उससे मिलना था और हिंदू कातिलों से इंतकाम ले और गुंडों से इंतकाम लेने की बात करनी थी। खतरा इस बात का था कि इब्राहिम खान चूंकि मुझे जानता नहीं, इसलिए उसे तो थोड़े पसोपेश के बाद यकीन आ जाएगा कि मैं मुसलमान ही हूँ। लेकिन अगर वहाँ कोई ऐसा मुसलमान मौजूद हुआ जिसने मुझे सूरत के शिव सेना के ऑफिस में बालाजी या मनु स्वानी के साथ देखा हो, तो वो मुझे धर्मचंद ही समझेंगे और मेरा सारा इंतकामी मिशन अधूरा रह जाएगा। लेकिन मेरा इब्राहिम खान से मिलना बहरहाल जरूरी था। मैंने शिवसेना के दफ्तर ही से किसी तरीके से इब्राहिम खान सदर सूरत मुस्लिम लीग का टेलीफोन नंबर मालूम किया और वक्त जाया किए बगैर शहर के पोस्ट ऑफिस के टेलीफोन बूथ से उसे फोन किया। थोड़ी देर घंटी बजती रही, फिर दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया और गुजराती जबान में कहा, मैं इब्राहिम खान हूँ, कहो। गुजराती जबान बड़ी आसान जबान है। चूंकि सुबह गुजरात पर मुसलमानों की सल्तनत एक अरसे तक कायम रही थी और रजिया सुल्ताना ही इस सूबे की हुक्मरान थी, इसलिए गुजराती जबान में फारसी और अरबी के ऐसे अल्फाज शामिल हो गए हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। कोई आदमी गुजराती बोल रहा हो तो कम से कम इतना जरूर आप समझ जाएंगे कि ये किस मौजू पर बात कर रहा है। मैंने उर्दू में कहा, इब्राहिम खान, मैं यूसुफ भाई बोल रहा हूँ, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ मिल सकता हूँ। इब्राहिम खान ने भी गुजराती उर्दू में कहा, भाई तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। मैंने कहा, इब्राहिम भाई, ये सब कुछ मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा। इब्राहिम खान ने जवाब दिया, शाम के वक्त मेरे दफ्तर में आ जाना, मैं दफ्तर में ही मिलूंगा। मुझे इल्म था कि दफ्तर एक सियासी पार्टी का है, वहाँ शाम के वक्त दूसरे लोग भी मौजूद होंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसा आदमी भी मौजूद हो जिसने मुझे वेडर रोड पर मुसलमानों के कैंप में बालाजी और मनु स्वानी के साथ देखा हो। मैंने कहा, इब्राहिम खान, मुझे तुमसे तन्हाई में कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहां हम दोनों के सिवा और कोई ना हो। जवाब में एक सेकंड तक खामोशी छाई रही। जरूर इब्राहिम भाई यही सोच रहा होगा कि वो मुझसे तन्हाई में मुलाकात करे या ना करे, क्योंकि सूरत में हालात कशीदा थे। 2-3 दिन पहले वहाँ मुसलमानों का बेदर्दी से खून बहाया गया था और इब्राहिम खान मुसलमानों की सियासी जमात का सदर था। वो ये सोचने में हक बजानिब था कि कहीं ये शिव सेना की कोई साजिश न हो। उसने कहा, तुमने हमारा दफ्तर देखा हुआ है। मैंने उसे बताया कि मैंने दफ्तर देखा है। इब्राहिम खान बोला, दफ्तर के पीछे एक गली है, गली में एक मकान है जिसके दरवाजे पर सब्ज रंग किया हुआ है, तुम वहाँ आ जाना, दरवाजा खुला होगा। बालाजी और मनु स्वानी अहमदाबाद में मुस्लिम कुश फसादात की आग भड़काने की साजिश के सिलसिले में बाल ठाकरे की हिदायत पर अहमदाबाद गए हुए थे। मैं शिवसेना के दफ्तर में अकेला था। जब सूरज गुरूब हुआ तो मैं फरगाम रोड पर आ गया। एक जानिब जहां मुसलमानों के आखिरी चंद एक घर थे, वहां मुस्लिम लीग का दफ्तर एक गली में था। गली के पीछे एक और गली थी। इस अकबी गली में एक मकान के लोहे के दरवाजे पर सब्ज रंग किया हुआ था। मैंने उसे अंदर को धकेला, दरवाजा खुला था। मैंने दरवाजा खोलकर इब्राहिम खान का नाम लेकर उसे आवाज दी। अंदर छोटा सा सेहन था। सेहन में एक जानिब एक आदमी मूंठे पर बैठा बीड़ी पी रहा था। अखबार उसने आगे को रखा हुआ था। उसका लिबास गुजरात काठियावाड़ के मुसलमानों वाला था। सर पर मुसलमानों वाली गोल सफेद जालीदार टोपी थी। छोटी काली दाढ़ी थी।
पाजामा कुर्ता खद्दर का था। वहाँ के हिंदू और मुसलमानों के पहनावे में भी बड़ा फर्क था। हिंदू हमेशा तंग मोरी वाला पाजामा पहनते थे, जबकि मुसलमानों के पाजामे की मोरी चौड़ी होती थी। उसने दरवाजे की तरफ निगाह उठाकर देखा और कहा, तुमने ही मुझे फोन किया था। मैंने कहा, हाँ इब्राहिम भाई, मैंने ही फोन किया था। उसने बीड़ी सहन में फेंकी और मूठे पर सीधा होकर बैठ गया। आ जाओ। मैंने जाते ही अस्सलाम वालेकुम कहा, उससे हाथ मिलाया और सामने वाले मूठे पर बैठ गया। इब्राहिम खान बड़ी गहरी नजरों से मुझे देख रहा था, बल्कि मेरा जायजा ले रहा था। मैंने अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम हैदर अली है। नाम के सिवा मैंने इब्राहिम भाई को अपने बारे में कुछ न बताया कि मैं पाकिस्तान से एक मिशन लेकर हिंदुस्तान आया हूँ और ये मिशन पाकिस्तान की सलामती और भारत में पाकिस्तान दुश्मन हिंदू जमातों के पाकिस्तान में तखरीबकारी के मंसूबों को नाकाम बनाना और उन्हें तबाह करना है। नाम मैंने उन्हें अपना सही बता दिया था। मैंने उसे यही कहा कि मैं अम्बाले का रहने वाला मुसलमान हूँ। कारोबारी सिलसिले में चंद माह से सूरत में मुकीम हूँ। यहाँ के मुसलमानों को हिंदुओं ने जिस वहशियाना दरिंदगी का निशाना बनाया है, इसके वाकयात मैंने वेडर रोड वाले मुसलमान पनाह गुज़ीनों के कैंप में सुने हैं और मैं इन हिंदू गुंडों से अपने मुसलमान बहन भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ, जिन्होंने उन्हें कत्ल किया और उनके घरों को आग लगाई। इब्राहिम मुसलसल मुझे घूर रहा था। कहने लगा, इस काम के लिए तुमने मुझे क्यों चुना? क्या मैं ही सारे हिंदुस्तान में एक दलेर आदमी रह गया हूँ? उसकी बात भी माकूल थी। मैंने कहा, भाई तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूँ कि तुम मुसलमानों की जमात मुस्लिम लीग के सदर हो। दूसरी बात यह है कि तुम सूरत के रहने वाले हो। तुम यहाँ के हिंदुओं को भी जानते हो और मुसलमानों को भी जानते हो, जबकि मैं यहाँ अजनबी हूँ। तुम मुसलमानों के कातिल गुंडों को तलाश करने में मेरी मदद कर सकते हो। इब्राहिम खान मुझे हाथ नहीं पकड़ा रहा था। उसे ऐसा ही करना चाहिए था। उसे कैसे यकीन आता कि मैं मुसलमानों का हमदर्द और मुसलमान हूँ। वो कहने लगा, भाई मुझे क्या मालूम कि वो हिंदू कौन थे। हजारों गुंडों ने हमला किया था, क्या खबर किसने कत्ल किया। मैं इब्राहिम खान को समझाने की कोशिश करने लगा कि वो मेरे साथ ताउन करे। मुझे उसके ताउन की जरूरत है। उसकी मदद के बगैर मैं मुसलमानों के कातिल हिंदुओं तक नहीं पहुंच सकता। और ये कि मैंने मुसलमानों पर हिंदू गुंडों के जुल्म सितम के जो वाकयात सुने हैं, उन्होंने मेरे अंदर ज्वालामुखी की आग भड़का दी है। एक मुसलमान की हैसियत से मैं दरिंदा सिफत गुंडों से अपने भाई बहनों के खून का जब तक हिसाब न चुका लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बातों का इब्राहिम खान पर कुछ कुछ असर होने लगा था। उसी वक्त मकान में एक आदमी दाखिल हुआ जो सलाम करके हमारे करीब आ गया। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम तो वही हिंदू हो जो उस रोज कैंप में बालाजी और वसवानी के साथ मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने आए थे। तुम्हारा नाम धर्मचंद है। मुझ पर गोया बिजली सी गिरी। उस आदमी ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। ये सुनकर इब्राहिम खान संभल कर बैठ गया और मेरी तरफ गजबनाक निगाहों से देखकर बोला, मैं पहले ही सोच रहा था कि इसे मुसलमानों के साथ इतनी हमदर्दी कैसे पैदा हो गई। अब मालूम हुआ कि ये भी शिवसेना की साजिश के तहत ही यहाँ आया है। उसने नए आने वाले आदमी से कहा, सत्तार भाई अपने आदमियों को बुलाओ, मैं इसे यहाँ काबू किए रखता हूँ। ये शिवसेना का जासूस है, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैंने कहा, इब्राहिम भाई मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। यकीन करो मैं मुसलमान हूँ। सत्तार भाई बोला, अगर मुसलमान हो तो उस रोज कैंप में बालाजी और शिवसेना के वसवानी के साथ किस लिए आए थे। मैं कुछ कहने लगा तो उन दोनों ने मुझे दबोच लिया। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं थे। मैंने अपने आप को छुड़ाया, लेकिन भागने की बजाय अपनी जगह पर मौजूद रहा। सत्तार भाई ने कहा, अगर तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान हो, तो फिर शिवसेना के जासूस हो और यहाँ जासूसी करने आए हो। मैंने सत्तार भाई से कहा, खुदा के लिए तुम यहाँ बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। मेरा एक राज तुम पर खुल गया है कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ। इसकी जरा सी भिनक भी बालाजी और वसवानी को पड़ गई तो न सिर्फ ये कि मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि जिन हजारों भारतीय मुसलमानों की जानें बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नहीं बच सकेंगे। यहाँ बैठ जाओ और तुम दोनों मेरी बात को गौर से सुनो। मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से मुसलमानों और पाकिस्तान की सलामती के मिशन को लेकर भारत में दाखिल हुआ हूँ। मैं उन्हें ये बता भी नहीं सकता था। मैंने उन्हें बताया कि मैं अम्बाले का मुसलमान हूँ। अहमदाबाद, भागलपुर और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में इंतहा पसंद हिंदू जमातों के इशारे पर हिंदू गुंडे मुसलमानों का जो आए दिन खून बहाते रहते हैं, उसे देखकर मेरा खून खौलता है। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं हिंदू बनकर इन मुस्लिम दुश्मन हिंदू जमातों में घुस जाऊंगा और उनकी मुसलमानों के खिलाफ साजिशों को सिर्फ बेनकाब ही नहीं करूंगा, बल्कि हर वक्त मुसलमानों को इन साजिशों से आगाह करके अपने मुसलमान बहन भाइयों की जान बचाऊंगा। चुनाचे मैंने अपना नाम धर्मचंद रखा और हिंदू बनकर पंजाब से शिवसेना की जमात में भर्ती हो गया और अपनी होशियारी की वजह से जमात का अहम रुकन बन गया और मेरी रसाई बालाजी और बाल ठाकरे तक हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।